بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، گھپ اندھیرے کی وہ رات بہت سرد تھی، ویران اور سنسان رات، لمبا سا کچا راستہ جس کے دونوں طرف چھوٹی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، تیز ہوا سے جھاڑیوں کی سرسراہٹ ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بس میلوں تک پھیلی ہوئی جھاڑیاں ہی تھیں، یا پھر کہیں کہیں بڑے بڑے مگر سوکھے ٹھنڈ منڈ درخت تھے۔ اس قدر ویران اور خوفناک جگہ تھی کہ رات تو رات، شاید دن کو بھی کوئی اس جگہ سے نہیں گزرتا ہوگا، مگر وہ شخص جو جانے کب سے اس کچے راستے پر چلا جا رہا تھا، وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ احمد کمال نام تھا اس کا۔ اس خوفناک ماحول میں وہ بالکل تنہا چلا جا رہا تھا۔ ہر طرف بس جھاڑیاں تھیں جو ہوا سے کسی بھوت کی طرح ادھر ادھر جھوم رہی تھی، مگر وہ شخص تو جیسے کسی طرف دھیان میں ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، مگر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ پھر دور اسے ایک بڑا سا درخت نظر آیا جو دور سے کسی ہیبتناک مخلوق کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اس درخت کے پاس رکنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا، اس لیے وہ درخت کے پاس سے گزرتا چلا گیا، مگر اچانک جیسے آہستہ سے کوئی اسے اس کے نام سے پکارتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، مگر پھر وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھنے لگا کہ اچانک پھر وہی آواز سنائی دی، احمد کمال، رک جاؤ، مجھے بچا لو، مجھے اس عذاب سے نکالو، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، میں زندہ ہوں، وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، تم اس درخت کے پیچھے آؤ، میری مدد کرو۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ احمد کمال رک گیا، وہ بہت خوف محسوس کر رہا تھا، مگر وہ کون شخص ہے جو اس درخت کے پیچھے موجود ہے؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس درخت کے پیچھے پہنچا، مگر یہ کیا، اس درخت کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کون ہو تم اور کہاں سے بول رہے ہو؟ احمد کمال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بالکل تمہارے سامنے ہوں احمد کمال، وہی دردناک آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک قبر تھی جس میں سے آواز آ رہی تھی، وہ قبر اس درخت کے تنے کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ اوہ، تو کیا تم اس قبر سے بول رہے ہو؟ احمد کمال نے خوف میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں احمد کمال، میں اس قبر سے بول رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں زندہ ہوں، وہ مجھے مار دے گا، قبر کھولو، وہ مجھے مار دے گا، وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بچا لو خدا کے لیے۔ احمد کمال بہت خوف زدہ ہو چکا تھا اور گھبراتے ہوئے قبر کے پاس بیٹھ گیا، اور جیسے ہی قبر کے پاس بیٹھا، اچانک وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ خواب تھا، بھیانک خواب، وہی بھیانک خواب جو اسے پچھلے ایک ہفتے سے بلا ناغہ ہر رات دکھائی دے رہا تھا۔ اوہ میرے اللہ! پھر وہی خواب۔ اس نے اپنے سر کو پکڑ کر کہا، یا اللہ، آخر تو مجھے کس گناہ کی سزا دے رہا ہے؟ یہ خواب تو مجھے پاگل کر دے گا۔ اللہ مجھے اس خواب سے نجات دلا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آخر یہ خواب مجھے ہر رات کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ وہ کون ہے جو قبر میں مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ وہ بالکل کسی معصوم بچے کی طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکا تھا، مسلسل ہر رات اسے یہی خواب دکھائی دیتا تھا، جس کے بعد وہ پوری رات جاگتا رہتا تھا۔ آخر یہ عذاب کب چھوڑے گا میری جان؟ مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ خواب مجھے پاگل کر دے گا۔ اور پھر اس نے کچھ سوچ کر اپنا سر تکیے کے ساتھ ٹکا لیا۔ نیند تو اسے اب کیا آنی تھی، اور پھر اذان کی آواز سن کر اٹھ گیا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اور پھر اٹھ کر ناشتہ بنانے چلا گیا۔ وہ 30-32 سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود تنہا تھا۔ وہ اسکول کے بچوں میں ٹیچر تھا، مگر پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسکول بھی نہیں گیا تھا۔ اب وہ اپنے دوست انور علی کے گھر جا رہا تھا، جو کہ ایک نفسیاتی ڈاکٹر تھا۔ وہ ایک ٹیکسی میں اپنے دوست انور علی کے گھر تقریباً 15-20 دن کے بعد جا رہا تھا، اور پھر اس نے ٹیکسی اس کے گھر کے سامنے رکوا دی۔ ٹیکسی کا بل ادا کر کے گیٹ پر لگی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور انور علی سامنے کھڑا تھا۔ ارے کمال، تم آج کیسے راستہ بھول گئے؟ اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آؤ اندر آؤ، انور کمال نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ احمد کمال اندر آ گیا۔ انور علی نے دروازہ بند کیا۔ ہاں ہاں بتاؤ، سب خیریت تو ہے نا؟ انور علی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بلکہ پہلے تم ٹھہرو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں، بیگم ذرا اپنے ماں باپ سے ملنے گئی ہوئی ہے۔ انور علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، احمد کمال نے کہا۔ بولو کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، انور علی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں انور، میں بہت پریشان ہوں، میں پاگل ہو رہا ہوں، اس خواب نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ پچھلے ہفتے سے مجھے یہ خواب دکھائی دے رہا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ ہر رات
خواب کے بعد میری جب آنکھ کھلتی ہے تو میں کتنی اذیت محسوس کرتا ہوں۔ اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا، کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے تفصیل سے سب بتا دو، پھر میں کچھ کروں گا۔ انور علی نے کہا، آج سے تقریباً کوئی 8 دن پہلے مجھے خواب نظر آیا کہ میں ایک خوفناک راستے پر تنہا چلا جا رہا ہوں، اور پھر ایک خوفناک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے جیسے کوئی میرا نام لے کر پکارتا ہے، اور میں درخت کے پیچھے پہنچتا ہوں تو اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس خواب کو دوسرے خواب کی طرح نظر انداز کر گیا، مگر دوسری رات پھر وہی خواب دکھائی دیا۔ اس رات بھی میں اس درخت کے پیچھے پہنچا تو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے پہلی دفعہ کچھ خوف محسوس ہوا، ایک ہی خواب میں دوسری دفعہ دیکھ رہا تھا، اور پھر تیسری رات بھی مجھے وہی خواب دکھائی دیا تو مجھے بہت فکر ہونے لگی۔ اس راستے کی جھاڑیاں میں تمہیں بتا نہیں سکتا انور کس قدر خوفناک لگتی تھی۔ 4 رات تو یہی تک خواب دکھائی دیا کہ میں درخت کے پیچھے پہنچا تو میری آنکھ کھل جاتی، مگر 5ویں رات مجھے کسی مرد کی سسکیاں اور کراہیں سنائی دی۔ جب میں درخت کے پیچھے پہنچا تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اچانک مجھے ایک قبر دکھائی دی جس میں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اس قبر سے آوازیں آنے لگی، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے مارنے آ رہا ہے، مجھے اس قبر سے نکالو۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا انور اس رات میری کیا حالت ہوئی، اور اس طرح 6ٹھی اور 7ویں رات بھی یہی خواب دکھائی دیا۔ میں کیا بتاؤں انور، کس قدر تکلیف اور بے بسی ہے اس کی آواز میں جب وہ مجھے کہتا ہے مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا۔ میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں انور، کس قدر اذیت محسوس کرتا ہوں میں۔ آخر یہ خواب مجھے کیوں دکھائی دیتا ہے؟ میں پاگل ہو رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، کچھ کرو انور، کچھ کرو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ انور علی کے پاس آ بیٹھا اور اسے تسلی دینے لگا، ہمت کرو کمال، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ مجھے، انور علی نے پوچھا، جب سب سے پہلے یہ والا خواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سے 2-4 دن پہلے تم نے کوئی ڈراؤنی فلم وغیرہ تو نہیں دیکھی، یا کوئی کہانی وغیرہ پڑھی ہو جس میں اس طرح کا کوئی سین آیا ہو؟ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، فلم وغیرہ تو میں دیکھتا نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے، اس نے فوراً کہا۔ تم ایسا کرو، آج کی رات میرے ہی گھر پر سو جاؤ، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اور پھر وہ سارا دن انور علی کے گھر رہا۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی ویسے ویسے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر رات کے 10 بجے وہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ انور علی نے اسے تسلی دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احمد کمال بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر وہ آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جیسے ہی گہری نیند سوئے گا وہ بھیانک خواب پھر دکھائی دے گا۔ مگر آخر کب تک؟ آخر اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی، اور پھر نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں پہنچ گیا، اور پھر وہ اسی درخت کے پیچھے پہنچ گیا۔ مجھے نکالو احمد کمال، مجھے اس قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں میں کوئی باری چیز پکڑی ہوئی ہے۔ احمد کمال، خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ مجھے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس کی آواز میں درد تھا، بے بسی تھی، اور پھر وہ اس قبر کے پاس بیٹھ گیا، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اس قبر پر سے مٹی ہٹانے لگا۔ اب اس نے تھوڑی سی ہی مٹی ہٹائی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پسینے سے اس کے تمام کپڑے گیلے ہو رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے اس عذاب سے نجات دلا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچانک اس کی نظر بیٹھ کے دائیں طرف پڑی، وہاں کرسی پر انور علی بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو تمہیں آج پھر وہی خواب دکھائی دیا؟ انور علی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا تمہیں آج رات بھی یہی خواب دکھائی دے گا، اس لیے میں تمہارے لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد یہاں پہ آ کے تمہیں آبزرو کرنے لگا۔ تم تقریباً 11 بجے کے قریب سو گئے تھے، اور تقریباً 1 بجے تک تم بالکل نارمل انداز میں سو رہے تھے، مگر 1 بجے تمہارے چہرے پر اذیت اور خوف کے آثار نظر آنے لگے، اور پھر تقریباً 2 بجے کے قریب تمہارے اچانک اٹھتے ہی غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ خواب تمہیں 1 بجے دکھائی دیتا ہے۔ کیا تم آج بھی درخت کے پیچھے اس قبر کے پاس بیٹھے تو تمہاری آنکھ کھل گئی؟ نہیں، آج تو یہ لفظ سنائی دیا کہ وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسرا میں اس قبر پر سے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہا تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ اس نے سر پکڑ کر کہا، اچھا ایک بات بتاؤ، کیا خواب میں تمہیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ خواب شروع ہوتا ہے اس وقت اچانک تم کہاں سے آتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ یا کسی گاڑی سے اترتے ہو یا کسی دروازے سے وغیرہ وغیرہ۔ انور علی نے پوچھا۔ نہیں، بس میں خود کو اس کچے راستے پر چلتا ہوا پاتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا وہ جگہ تم نے پہلے بھی دیکھی ہے جو جگہ تمہیں خواب میں دکھائی دیتی ہے؟ انور علی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے وہ جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی، ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں دکھائی دیتی ہیں، بس کہیں کہیں سوکھے سڑے درخت۔ ہاں، یہ ضرور محسوس کرتا ہوں کہ جھاڑیوں کا سلسلہ بہت دور دور پھیلا ہوا ہے، مگر اس جگہ ہوا بہت تیز چلتی ہے جس سے جھاڑیاں بہت تیزی سے ادھر ادھر جھوم رہی ہوتی ہیں، احمد کمال نے کہا۔ ایک بات میں نے محسوس کی ہے کمال، انور علی نے کہا۔ وہ کیا؟ احمد کمال نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کہ ہر رات ہر بار تمہیں خواب تھوڑے سے اضافے کے ساتھ نظر آتا ہے۔ پہلے
तुम सिर्फ दरख्त के पीछे पहुंचे तो तुम्हारी आंख खुल गई, बाद में तुम्हें वो कब्र नजर आई तो तुम्हारी आंख खुल गई, और अब तुम इस कब्र से मट्टी हटा रहे थे और तुम्हारी आंख खुल गई। इसका मतलब है वो ख्वाब तुम्हें पूरा नहीं दिखाई देता। शायद तुम ये ख्वाब एकदम पूरा नहीं देख सकते क्योंकि इस तरह तुम्हारी जान भी जा सकती है। शायद इसलिए तुम आज रात भी सिर्फ कब्र के पास बैठे तो तुम्हारी आंख खुल गई। इस कब्र में कुछ न कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम बुरी तरह खौफजदा हो सकते हो, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ये ख्वाब तुम्हें दिखाई दे रहा है। मैंने एक बात सोची है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, फिलहाल तुम सो जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम अनवर? भला अब मुझे नींद कहाँ आएगी? और आ भी गई तो अगर वही ख्वाब दोबारा नजर आया तो? नहीं, वो ख्वाब अब तुम्हें नहीं दिखाई देगा, वो आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देगा। शायद इसकी भी कोई ना कोई वजह है। अच्छा अब तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करूंगा, अनवर अली ने कहा और उठकर चला गया। अहमद कमाल तकरीबन आधा घंटा लेटा रहा, मगर नींद इसकी पलकों से शायद बहुत दूर चली गई थी। मगर 1 घंटा बाद इसकी पलकें बोझल होने लगी और फिर वो सो गया। सुबह जब इसकी आंख खुली तो 9 बज रहे थे। इसने उठकर मुंह हाथ धोया। अनवर अली जा चुका था। इसने नाश्ता किया और फिर वो सारा दिन इस घर में बस यही बात सोचता रहा कि आखिर अनवर अली इससे क्या बात करना चाहता है। और फिर शाम 6 बजे अनवर अली आ गया। हाँ भाई, कैसे गुजरा दिन? और सुनाओ, 2 बजे के बाद तो रात सुकून से गुजरी थी ना? इसने बैठते हुए कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल सुकून से। और तुमने सुबह उठाया क्यों नहीं? मैं 9 बजे उठा था। इसने कहा। हाँ, बस मैंने सोचा इस ख्वाब की वजह से तुम ठीक से सो नहीं सके काफ़ी दिनों से, इसलिए गहरी नींद से नहीं उठाना तुम्हें, अनवर अली ने कहा और उठकर चेंज करने चला गया। अहमद कमाल चाय बनाने चला गया। 10 मिनट बाद वो कपड़े बदल कर आ गया और थोड़ी देर बाद अहमद कमाल चाय लेकर आ गया। हाँ अब बताओ अनवर, तुमने क्या सोचा है? सारा दिन मैं इसी उलझन में रहा, अहमद कमाल ने चाय का कप उठाकर कहा। दरअसल तुम्हारे हर रात एक ही ख्वाब देखने की कोई ना कोई वजह है, और हर रात तुम्हारा अधूरा ख्वाब देखने की वजह से तुम्हारा ज़हनी तौर पर खौफजदा होना, तुम कब्र तक पहुंचकर इस कदर खौफजदा हो जाते हो कि तुम्हारी आंख खुल जाती है। शायद खोदने पर तुम्हें कोई ऐसा खौफनाक मंजर नजर आएगा कि खौफ से तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब तक तुम इस खौफ को जहन से नहीं निकालोगे तब तक तुम ये ख्वाब मुकम्मल नहीं देख सकते, और जब तक तुम ये ख्वाब पूरा नहीं देख सकते इस वक्त तक कोई भी नतीजा निकालना बहुत मुश्किल है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से केस आए हैं मगर ये इन सब से अनोखा है, इसलिए तुम्हें ये ख्वाब पूरा देखना होगा और इस ख्वाब के दौरान तुम्हारी आंख खुल ना जाए। इसलिए आज रात मैं तुम्हें नींद की गोलियां दूंगा जिससे तुम 12 घंटे बिल्कुल पुरसकून नींद सो जाओगे। बस सोने से पहले तुम ज़हनी तौर पर इस ख्वाब से खौफजदा नहीं होना, अनवर अली ने कहा। मगर मैं ये ख्वाब पूरा क्यों देखूं, और तुम क्यों चाहते हो कि मैं ख्वाब पूरा देखूं? अहमद कमाल ने हैरत से कहा। इस पुरस्कार मामले का यही हल है। ये ख्वाब तुम्हें बिला वजह नहीं दिखाई दे रहा है। इस ख्वाब के पीछे कोई ना कोई राज है और वो राज हमें मालूम करना है, और इसलिए के लिए ज़रूरी है कि तुम वो ख्वाब पूरा देखो। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अनोखा केस है। मुझे लगता है कि कोई हकीकत में तुमसे मदद मांग रहा है कमाल। अनवर अली ने कहा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अनवर? अहमद कमाल ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा। हाँ कमाल, मैं ठीक कह रहा हूँ। कोई सचमुच तुम्हें मदद के लिए बुला रहा है, इसलिए आज रात तुम ये ख्वाब पूरा देखोगे, अनवर अली ने कहा। और फिर रात 9 बजे अनवर अली ने 2 गोलियां नींद की अहमद कमाल को दी। अहमद कमाल ने वो 2 गोलियां पानी के साथ लीं और फिर 10 मिनट बाद अहमद कमाल की आंखें बोझल होने लगीं। अनवर अली इसके पास बैठा रहा और फिर वो सो गया और गहरी मगर पुरसकून नींद सो रहा था। और फिर ऐसे ही रात के 1 बजे अनवर अली ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता अहमद कमाल के चेहरे पर खौफ और अजियत के आसार नजर आ रहे हैं। शायद ख्वाब शुरू हो गया था। अब वो इस कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था। फिर अपना नाम सुनकर इस दरख्त के पीछे पहुंचा, मगर इसे पुकारने वाला इस दरख्त के पीछे मौजूद नहीं था। और फिर इसे वो कब्र नजर आ गई जिसमें से वो आवाज़ें आ रही थी। और फिर वो इस कब्र के पास बैठ गया और दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगा। वो बुरी तरह खौफजदा था। इस पुरस्कार जगह पर तन्हा आधी रात को वो एक कब्र खोद रहा था जिसमें से एक जिंदा इंसान की सिसकियां और कर्राहें इसे खौफजदा कर रही थी। मगर वो बहुत तेजी से इस कब्र से मिट्टी हटाने लगा और फिर इसे कब्र में एक बोरी वाज़ह नजर आने लगी। इसने धड़कते दिल से वो बोरी बाहर खींच ली जो काफ़ी वजनी थी। इसने इस बोरी का मुंह खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। बोरी में एक इंसान के पांव नजर आने लगे। इसने दूसरी तरफ से बोरी पकड़कर खींची। अब वो लाश बोरी से बाहर आ गई और फिर इस लाश का सर देखकर खौफ से इसकी सांसें रुकने लगी। वो सर गोश्त पोश का सिर्फ एक लोथड़ा नजर आ रहा था जिसे किसी ने इसके सर को वजनी चीज से बुरी तरह कुचला हो। इसकी शक्ल पहचानना दूर की बात थी, अब कोई आवाज नहीं आ रही थी।
जिसे वो सिर्फ अपनी लाश दिखाना चाहता था। इसने वापस इस लाश को बोरी में डालकर इस कब्र में डाल दिया और मिट्टी से इसे दोबारा बंद कर दिया। अब वो उठ खड़ा हुआ और इसने एक नज़र कब्र पर डाली और फिर अचानक इसके सामने का मंजर बिल्कुल साफ हो गया। अब ना कोई रास्ता था, ना कोई कब्र थी और ना वो लाश। और फिर जब इसकी आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। इसे ख्वाब वाली बात याद आ गई। इस मस्क शुदा सर की तस्वीर से इसे अब नज़र आने लगी। खौफ की एक लहर इसके चेहरे पर मुंडलाने लगी। अनवर अली शायद जा चुका था। वो बेड से उतर आया, गुस्ल करके वो नाश्ता करने लगा। इसका ख्याल पूरी तरह इस लाश की तरफ था। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है या हकीकत है? और अगर ये हकीकत है तो वो लाश किसकी है और किस बेरहम दरिंदे ने इसको बेदर्दी से कत्ल किया है? और ये ख्वाब मुझे क्यों दिखाई देता है? और लाश मुझसे अब क्या चाहती है? यही बातें वो सारा दिन सोचता रहा। और फिर शाम 5 बजे अनवर अली आ गया। और भाई दिन तो अच्छा गुजरा। इसने बैठते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा गुजरा। तुम ठहरो, मैं चाय लेकर आता हूँ। उसने उठते हुए कहा, नहीं तुम बैठो, पहले तुम ख्वाब वाली बात बताओ। क्या इस कब्र खोदने के बाद कुछ दिखाई दिया तुमको? इसने इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, हाँ मैंने ख्वाब में इस कब्र को खोला था। जानते हो इसमें से क्या निकला? एक शख्स की लाश जिसका सर बहुत बुरी तरह कुचला हुआ था और शायद इसकी मौत भी ऐसे ही वाक़या हुई। मेरा मतलब है इसके सर को किसी वज़नी शाफ्ट वगैरह से तब तक निशाना बनाया जाता रहा जब तक इसकी जान नहीं चली गई। मैंने इस लाश को वापस कब्र में बंद कर दिया है। बस इसके बाद ख्वाब की कोई बात नज़र नहीं आई। मैं बस यहीं तक ही ख्वाब देखा है, इसके आगे नहीं। और अब मैं क्या करूं अनवर? मैं तो इस ख्वाब से पहले ही बहुत परेशान था। अब वो लाश देखने के बाद तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरी हालत क्या हो रही है। आखिर वो लाश किसकी है? वो मुझसे क्या मदद लेना चाहता है और मुझसे ही क्यों? अहमद कमाल ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरी समझ में तो इसका एक ही हल नज़र आ रहा है, मगर मैं जानता हूँ कि वो तुम नहीं करोगे। वो हल मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। अनवर अली ने कहा, क्या मतलब अनवर? इस भयानक ख्वाब से छुटकारा हासिल करने के लिए तो मैं मुश्किल से मुश्किल काम करने को भी तैयार हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ? इसने पुरुमीद नज़रों से अनवर अली की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। इसका एक ही हल है और ये है कि तुम हकीकत में वो जगह तलाश करो जो तुम्हें ख्वाब में दिखाई देती है और इस कब्र में मौजूद लाश के कातिल तक पहुँचो और इससे सज़ा दिलवाओ। यही वो लाश चाहती है। हाँ, वो लाश अपने कातिल को सज़ा दिलवाना चाहती है और इस कातिल की शक्ल तुम्हें ख्वाब में दिखाई ना देने की वजह यह है कि शायद इसने खुद भी अपने कातिल को नहीं देखा। ये तुम क्या कह रहे हो अनवर? भला मैं इस कातिल तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मैं तो इस जगह को भी नहीं जानता कि वो कौन सी जगह है और तो और मकतूल की शक्ल भी नहीं देख सका। इसे इतनी बुरी तरह कुचला गया था इसका सर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानता था तुम साफ इनकार करोगे, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर इस भयानक ख्वाब से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें वो जगह तलाश करनी होगी जहाँ वो लाश दफन है और उसके कातिल तक पहुँचकर इसे सजा दिलवाओ। यही वो लाश चाहती है, वरना उम्र भर शायद वो ख्वाब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अनवर अली ने कहा, उठकर कपड़े बदलने चला गया। अहमद कमाल वहीं अपना सर पकड़े बैठा रहा। 15 मिनट बाद अनवर अली कपड़े बदल कर आ गया। हाँ कमाल, तुमने क्या सोचा? मैं जानता हूँ ये एक नामुमकिन काम है, मगर मेरे दोस्त इस परेशानी बल्कि मुसीबत का यही हाल है और कोई नहीं। सोच लो, या तो अपनी पूरी ज़िंदगी इस भयानक ख्वाब के साथ गुजार दो, फिर वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इसने अपना सर पकड़ लिया। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत छुपी होती है, बस इसमें भी कोई ना कोई राज छुपा होगा। मैं ज़रा अपने एक मरीज़ को देखने जा रहा हूँ और मैं कल तुमसे इस मौजू पर बात करूँगा। तब तक तुम कुछ सोच लो, मगर मुझे उम्मीद है तुम अच्छा ही सोचोगे, अनवर अली ने कहा और उठकर बाहर निकल गया। और अहमद कमाल मजीद उलझनों और सोचों में खो गया। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या वो अनवर अली के बताए हुए हल पर अमल करे या इसका कोई और हल तलाश करने की कोशिश करे। यही सोचते हुए इसने फैसला कर लिया। अब उसे सुबह का इंतज़ार था और फिर वो सो गया। इस वक्त वो सोने से ज़रा भी नहीं घबरा रहा था और मामूल के मुताबिक ख्वाब भी इसे दिखाई दिया, मगर अब सिर्फ थोड़ी सी उलझन थी। इसके जहन में कोई खौफ नहीं था और इसने सुबह उठकर नमाज़ पढ़कर अल्लाह से अपनी कामयाबी के लिए दुआ की और फिर नाश्ते की मेज़ पर वो अनवर अली से बात कर रहा था। मैंने सोच लिया है, मैं तलाश करूँगा इस जगह को, इस बेरहम कातिल को भी, मगर सबसे बड़ी उलझन ये है कि ऐसी जगह शहर में है, किस शहर में है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हों। अहमद कमाल ने कहा, इसके लिए हमें किसी से मालूमात हासिल करनी होंगी। कोई ना कोई ज़रूर ऐसी जगह के बारे में जानता होगा, ख़ासकर शिकारी वगैरह ऐसी जगह के बारे में ज़रूर जानते होंगे। मैं 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूँ
जिनको जुनून की हद तक शिकार का शौक़ है वो कोई ना कोई ख़ास बात बता सकते हैं। मैं आज ही उनसे बात करूँगा। अब इस ख्वाब से डरने की भी ज़रूरत नहीं, इस ख्वाब ने तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करना था, सो कर लिया। अब इंशाअल्लाह शाम को अच्छी खबर के साथ मुलाकात होगी, अनवर अली ने कहा और उठकर बाहर निकल गया। इसके जाने के 10 मिनट बाद अचानक इसे वो रात वाली बात याद आ गई। वो अनवर अली से कहना चाहता था मगर इसके जहन से निकल गई थी। अब इसे याद आया कि अब तो वो जा चुका था, अब फिर शाम तक इसे इंतज़ार करना था। सारा दिन वो अच्छी खबर की उम्मीद लगाए बैठा रहा और फिर शाम 6 बजे के करीब अनवर अली आ गया। इसने कपड़े बदल कर अहमद कमाल को भी अपने पास बुला लिया। मैंने इस जगह के बारे में मालूमात हासिल कर ली। ऐसी 3 जगह हैं जहाँ झाड़ियाँ हैं जो मीलों तक फैली हुई हैं। कौन सी 3 जगह? क्या यहाँ से नज़दीक ही हैं? इसने पूछा। वो तो इस शहर में ही है, दो तो इस शहर में ही है, एक मशरक़ की तरफ इस शहर में जो मगरिब की तरफ एक ऊंची पहाड़ी है जो काली पहाड़ी के नाम से मशहूर है। एक जगह तो इसी काली पहाड़ी के पीछे मौजूद है। काली पहाड़ी को अबूर करने के बाद दाएं तरफ तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद वो झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है जो तकरीबन 15 मील तक फैला हुआ है। दूसरी जगह एक मिनट, अहमद कमाल ने अचानक इसकी बात काट दी। क्या हुआ अहमद कमाल? अनवर अली ने हैरत से कहा। तुमने कहा मगरिब की तरफ, एक बात मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था सुबह। वो क्या? अनवर अली ने हैरत से पूछा। कल रात बाकी ख्वाब तो वही दिखाई दिया जो हर रात दिखाई देता है, मगर एक बात मैंने ख्वाब में ऐसी देखी जो पहले नहीं देखी थी। वो ये कि इस ख्वाब के बाद मुझे एक बड़े से पहाड़ पर सूरज गरूब होता हुआ दिखाई दिया जो काफ़ी देर तक मुझे दिखाई देता रहा। ओह, तो इसका मतलब है वलाश तुम्हें ख्वाब में जगह बता चुकी है और तुम्हें अपना सफ़र कहाँ से शुरू करना है। बस अब अल्लाह का नाम लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ो। अनवर अली ने कहा। हाँ, मैं आज और अभी अपने सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ, अहमद कमाल ने कहा और फिर 10 मिनट बाद वो अपना बड़ा सा बैग उठाए एक टैक्सी में बैठ रहा था। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। तकरीबन रात के 9:30 बजे का वक्त था। अब टैक्सी काली पहाड़ी के करीब पहुँच गई और अभी मज़ीद इसे 2 घंटे और सफ़र करना था। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था और फिर 11:15 बजे के करीब टैक्सी रुक गई। बस साहब, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ना जाने आप कहाँ जाना चाहते हैं। आगे तो झाड़ियाँ और खुले मैदान के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे फारिग कर दें, मैं वापस जाऊँगा। टैक्सी वाले ने टैक्सी से उतरते हुए कहा। कमाल ने टैक्सी से उतरकर इसे किराया अदा किया। टैक्सी वाला किराया लेते ही टैक्सी में बैठकर रवाना हो गया और अहमद कमाल पैदल ही आगे चलने लगा। यहाँ चारों तरफ खुला मैदान था, यहाँ तक झाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे ही चलते चलते तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। अब आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर थोड़ा आगे चलकर इसकी खुशी की इंतहा न रही जब इस कच्चे रास्ते के दोनों तरफ इसने बिल्कुल वैसी ही झाड़ियों की कतार देखी जैसे वो ख्वाब में देखता था, मगर उन सूखे सड़े दरख्तों का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। वो मायूस नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि अभी इसने आधा सफ़र भी नहीं काटा, आगे यकीनन इसके मतलूबा जगह ज़रूर मौजूद होगी। ऐसे ही चलते चलते रात के 2 बज गए। अंधेरा इस कदर गहरा था कि वो ज़्यादा दूर तक देखने के काबिल नहीं था और फिर इसे थोड़े फासले पर एक दरख्त की झलक नज़र आने लगी। फिर इसे थोड़े फासले पे एक दरख्त की झलक नज़र आने लगी और वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा और फिर 5 मिनट बाद इस दरख्त के पास पहुंच गया, मगर करीब पहुंचकर इसे काफ़ी मायूसी हुई क्योंकि ये दरख्त इस दरख्त से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो वो ख्वाब में देखता रहा था। फिर भी इसने इस दरख्त के चारों तरफ घूम कर देखा, मगर ना तो ये वो दरख्त था और ना वहाँ वो कब्र थी। वह थोड़ा सा मायूस होकर मगर अल्लाह का नाम लेकर वो आगे चल पड़ा और फिर रात के 3 बज गए। थकन से इसकी बुरी हालत हो रही थी कि अब वो एक कदम उठाने के काबिल नहीं था और फिर उम्मीद की एक किरण इसे दिखाई दी। इसे दूर से एक और दरख्त की झलक दिखाई दी, मगर पास जाकर वो क्या देख कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात होगी, क्योंकि वो दरख्त इसके कच्चे रास्ते के दाएं तरफ था जबकि वो ख्वाब में बाएं तरफ दरख्त देख चुका था। और फिर भी इसने इस दरख्त को चारों तरफ से देख लिया, मगर नदारद यहाँ भी कोई भी खबर नहीं थी। वो दरख्त इस कच्चे रास्ते के बाएं तरफ कुछ 40 फीट दूर था। वो थकन से बेहाल हो रहा था, अब और चलना इसके लिए नामुमकिन था और वो वहीं कच्चे रास्ते पर एक तरफ होकर बैठ गया। नींद और थकावट की वजह से इसकी पलकें बोझल होने लगी और फिर वो वहीं लेट गया और लेटते ही इसकी आंख लग गई। अभी इसे लेटे वो मुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि अचानक वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसे अपने पाँव के करीब पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने दरख्त की तरफ से इसे कोई पत्थर खींच मारा हो। और वो कुछ देर इस दरख्त की तरफ देखता रहा, मगर फिर कोई और पत्थर नहीं आया तो वो इसे अपना वहम समझकर दोबारा लेट गया। इसने अभी आंखें बंद ही की थी जब अचानक फिर एक पत्थर वहां आकर गिरा और इस दफ़ा वो पत्थर इसकी टांग पर आहिस्ता से लगा। अब शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी क्योंकि एक छोटा सा पत्थर इसकी टांग के पास पड़ा हुआ था
اور اس نے پھر وہ درخت کی طرف دیکھا دوبارہ، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ہے وہاں اور کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے، سامنے آؤ۔ اچانک اس درخت کے پیچھے سے ایک شخص بالکل سفید لباس میں سامنے آ گیا۔ اس کا لباس اس قدر سفید تھا کہ وہ کسی دودھ یا بلب کی طرح چمک رہا تھا۔ اچانک وہ دائیں طرف چلنے لگا۔ احمد کمال وہیں بیٹھا رہا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس شخص وہیں رک گیا۔ احمد کمال پھر لیٹ گیا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، پتھر آ کر اس کی ٹانگ پر لگا اور پھر وہ دوبارہ اٹھ بیٹھا۔ وہ شخص پھر اس درخت کے پیچھے سے نکل کر اسی طرف چلنے لگا جس طرف وہ پہلے چل پڑا تھا۔ اب احمد کمال اس کا مطلب سمجھ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس شخص کے پیچھے چلنے لگا، مگر ایک بات نے احمد کمال کو کافی حیرت میں ڈالا کہ وہ شخص بالکل آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور احمد کمال بہت تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا، مگر فاصلہ جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ اور 15 منٹ بعد احمد کمال کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی، کیونکہ جہاں وہ کھڑا تھا یہ بالکل ویسا ہی کچا راستہ تھا جیسا وہ خواب میں دیکھتا رہتا تھا۔ اور پھر وہ شخص اس کچے راستے پر دائیں طرف چلنے لگا۔ کوئی 10-15 منٹ بعد ہی وہ ایک درخت کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ احمد کمال کو اس درخت کو پہچاننے میں ذرا برابر پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ وہی درخت تھا جس کے پیچھے وہ قبر موجود تھی۔ اور پھر وہ اس درخت کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ شخص اب وہاں موجود نہیں تھا اور پھر اس درخت کے نیچے ہی وہ قبر تھی جو اس کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بیگ سے قبر کھودنے والا سامان نکالا اور قبر کھودنے لگا۔ اس کا دل اس شخص کے تصور سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ اس قبر میں سے ایک وہ بوری نکال رہا تھا جس میں وہ لاش تھی۔ وہ جانتا تھا اس بوری میں ایک لاش موجود ہے جو بری طرح کچلی ہوئی ہے، مگر پھر بھی وہ ایک انجانے سے خطرے کو محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر بوری کھل گئی۔ اندر کا منظر اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اس نے نیلے رنگ کی جینز اور کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی جب اسے قتل کر کے اس قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ خواب میں ایک لاش دیکھنا تو ایک الگ بات ہے، مگر حقیقت میں اپنے سامنے لاش دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بہت بری بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے قبر میں جھانکا کہ شاید کوئی سراغ مل جائے جس سے قاتل تک پہنچنے میں مدد مل سکے، اور پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھی جب ایک چمکتی ہوئی چیز اسے اپنی چمک کے ساتھ اس قبر کے کونے میں پڑی ہوئی ملی۔ وہ جلدی سے قبر میں اتر گیا اور اس چمکتی ہوئی چیز کو اٹھا کر وہ باہر آ گیا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے بٹن پر پڑی۔ اس نے اسے دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتی وہ چیز اوپر سے کار کی ڈکی کی طرح اٹھ گئی اور اس کے اٹھتے ہی اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ایک لائٹر ہے، اور پھر وہ اسے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ تیسری کوشش میں وہ جل گیا اور اس کے جلتے ہی ایک عجیب و غریب میوزک بجنے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، خدا جب کسی کی مدد کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ اس نے اس لائٹر کو بجھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور اب ایک کام اور رہ گیا تھا، اور پھر اس لاش کے پاس آ بیٹھا اور پھر اس نے ایک ایک کر کے اس کی تمام جیبوں کی تلاشی لے ڈالی، مگر شاید قاتل نے اسے دفنانے سے پہلے اس کی تمام جیبیں خالی کر دی تھی۔ اب اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کی۔ اچانک پینٹ کی پچھلی جیب میں سے ایک کاغذ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اس کو جیب سے نکال لیا۔ وہ واقعی کاغذ تھا جو بند کر کے جیب میں رکھا گیا تھا۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا، اس لیے جیب کے ایک کونے میں چپک گیا تھا، اور نہ قاتل نے اپنی طرف سے اس کی جیبوں کو اچھی طرح تلاشی لی تھی۔ اس نے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نمبر کے ساتھ اور کچھ نہیں لکھا تھا، مگر پھر بھی اس نے اللہ کی طرف سے ایک اور مدد سمجھ کر اسے جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ سفید کپڑوں والا کون تھا، مگر وہ کوئی ایسی چیز وہاں اور نظر نہیں آئی۔ اس نے اس لاش کو دوبارہ بوری میں بند کر کے اس قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ 10-15 منٹ بعد وہ اس قبر کو پہلے کی طرح بند کر چکا تھا اور پھر راستے پر آیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ قاتل کس طرف سے آیا تھا، مگر ایک چھوٹی سی بات کو اس نے غور کیا تو اسے سمجھ میں آیا کہ وہ جس طرف سے آیا تھا اس طرف 2-3 درخت موجود تھے، وہ اسے ان میں سے کسی بھی درخت کے نیچے دفن کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ قاتل اس طرف سے آیا ہے، کیونکہ اس طرف سے دور دور تک درخت دکھائی نہیں دیا، اور پھر وہ اللہ کا نام لے کر اس طرف چل پڑا جس طرف تقریباً 7-8 میل کا سفر ابھی باقی تھا۔ اس وقت رات کے 4:30 بج رہے تھے۔ نیند اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر اس وقت سونا بیکار تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی تھی، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ 6:30 بجے اسے روشنی کی وجہ سے دور دور تک دکھائی دینے لگا۔ ایسے ہی چلتے چلتے 8:30 بج گئے، اور پھر دور اسے کچے پکے گھر اور سڑک کے دائیں طرف درختوں کی لمبی قطار سی نظر آئی، اور پھر 15-20 منٹ بعد وہ درختوں کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کچے پکے گھر بنے ہوئے تھے، اور پھر ایسے ہی چلتے چلتے وہ آدھے گھنٹے بعد شہر کی حدود میں داخل ہو گیا۔
यहाँ इसने एक छोटे से होटल में नाश्ता किया। इसने वो दोनों चीज़ें जेब से निकाली और इस लाइटर को उलट पुलट कर देखने लगा और फिर अचानक इसकी नज़र लाइटर के निचले हिस्से पर पड़ी जहाँ छोटे छोटे अंग्रेजी हरूफ में न्यू लाइटर डिज़ाइन छपा हुआ था, जो यकीनन इस दुकान का नाम था जहाँ से वो लाइटर ख़रीदा गया था। और फिर इसने वो कागज़ खोल कर देखा जिसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। ये दोनों चीज़ें इसे कातिल तक पहुँचा सकती थी या नहीं, इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा। अब ये इस पर मुनसिर था कि वह इन दोनों चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करता है। और फिर इसके जहन में एक बात आ गई। वो इस होटल से निकल आया और इसे एक पब्लिक फ़ोन बूथ की तलाश थी। फिर थोड़ी देर की तलाश के बाद इसे एक पब्लिक फ़ोन बूथ नज़र आया और वो थोड़ी देर बाद वो अपने इस कागज़ पर लिखे फ़ोन नंबर से नंबर मिला रहा था। दूसरी तरफ से चौथी घंटी के बाद रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बहुत ही ज़रूरी मामला दरपेश है। अहमद कमाल ने जवाब दिया। आप कौन साहब और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये सब मैं आपसे मिलने के बाद बताऊंगा। बस आप मुझे बताएं मैं कहाँ और कैसे मिल सकता हूँ। ठीक है, आप बता दें आप इस वक्त कहाँ हैं, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। अपनी निशानी कोई बता दें ताकि मेरा ड्राइवर आपको पहचान सके। और फिर कमाल ने एक शख्स से पूछकर इस जगह का पता फ़ोन पर इसे बता दिया और अपनी भी ख़ास निशानी इसे बता दी। दूसरी तरफ से उसे गाड़ी का नंबर बताने के बाद फ़ोन रख दिया गया। वो वहीं एक तरफ बेंच पर बैठ गया। तकरीबन 20 मिनट बाद एक कार इससे थोड़े फासले पर आकर रुक गई। अहमद कमाल को पहचानने में ज़रा देर नहीं लगी कि यही वो कार है, क्योंकि कार का नंबर वो देख चुका था। वो उठकर इस कार की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, अहमद कमाल ने इस बावर्दी ड्राइवर के पास पहुंचकर कहा, जो कार से निकलकर इधर उधर देख रहा था। वालेकुम सलाम, आप? ओह, तो आप हैं? ड्राइवर ने पहचानते हुए कहा। जी हाँ, मैं ही हूँ, वो जिसने अभी फ़ोन किया था। तो आइए बैठे साहब, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो कार में बैठ गया। कार आगे बढ़ गई। तकरीबन 20 मिनट कार सड़कों पर दौड़ती रही और फिर एक गली में दाखिल हो गई। वो एक खूबसूरत बंगला था जिसके सामने वो कार रुकी। हारन बजते ही गेट खुल गया और कार अंदर दाखिल हो गई और वो दोनों कार से उतर आए। आइए मेरे साथ, ड्राइवर ने कहा। आइए मेरे साथ, ड्राइवर ने एक तरफ चलते हुए कहा। अहमद कमाल इसके पीछे चलने लगा। दो दरवाजे छोड़ने के बाद ड्राइवर एक दरवाजे के सामने रुक गया और दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अहमद कमाल भी इसके साथ ही अंदर दाखिल हो गया। सामने कुर्सी के पास गया एक शख्स इससे 2-4 साल बड़ी उम्र का बैठा हुआ इसका इंतज़ार कर रहा था। साहब, ये हैं वो शख्स जिन्होंने आपको फ़ोन किया था, ड्राइवर ने कहा और कमरे से निकल गया। बैठिए, इसने कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा। खुद भी इनकी एक कुर्सी पर बैठ गया जिसके पास वो खड़ा था। हाँ, आप बताएं, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं और आप है कौन? मेरे ख्याल में तो हम पहले कभी नहीं मिले। आप ठीक कहते हैं, हम इससे पहले कभी नहीं मिले। आप ज़रा जहन पर जोर देकर सोचें, आपने कभी किसी को ये फ़ोन नंबर लिख कर दिया था? उसने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने वो कागज़ अहमद कमाल के हाथ से ले लिया और थोड़ी देर इस कागज़ को देखता रहा और फिर इसने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, ये फ़ोन नंबर तो मैंने अपने दोस्त शाहिद अली को लिख कर दिया था। दरअसल मैंने अपना घर नया ख़रीदा था और इसलिए मैंने अपने दोस्त शाहिद अली को ये फ़ोन नंबर लिख कर दिया था ताकि वो मुझे फ़ोन करे, मगर इसने फ़ोन किया ही नहीं और मसरूफ़ियत की वजह से मुझे भी टाइम नहीं मिला इसे फ़ोन करने का। आज तुमने ये कागज़ दिखाया तो मुझे याद आया, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ये कागज़ कहाँ से मिला? इस शख्स ने कहा जिसने अपना नाम अरसलान अहमद बताया था। देखिए अरसलान साहब, मैं ये तो नहीं कहता कि ये सच है या नहीं, मगर बल्कि 1 मिनट में आपको शुरू से सब बताता हूँ। फिर इसने शुरू से लेकर आखिर तक दास्तान सुना दी। इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे अहम सुराग ये फ़ोन नंबर है और जो मुझे इस लाश की जेब से मिला था। ओह मेरे खुदाया, ये तुम क्या कह रहे हो? तो क्या वो लाश मेरे दोस्त शाहिद अली की है? मेरा दोस्त शाहिद अली? वो बहुत गमगीन नज़र आ रहा था। हौसला रखिए, अभी हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। अच्छा 1 मिनट, अहमद कमाल ने जेब से वो लाइटर निकाला। मुझे ये लाइटर इस कब्र से मिला है। इसने वो लाइटर अरसलान अहमद की तरफ बढ़ा दिया। ये किसी न्यू लाइटर डिज़ाइन नामी शॉप से ख़रीदा गया है। अहमद कमाल ने कहा, हाँ, ये शॉप तो यहाँ है से पास में ही है, अरसलान अहमद ने कहा और वो लाइटर उसके हाथ से ले लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। अच्छा, एक सवाल और, क्या आपके दोस्त शाहिद अली सिगरेट पीता था? अहमद कमाल ने पूछा। नहीं, इसे तो सिगरेट से बहुत नफरत थी, वो तो मुझे भी अक्सर मना करता था। इससे तो ये साबित हुआ कि ये लाइटर आपके दोस्त शाहिद अली का नहीं है। आप ऐसा करें, ज़रा फ़ोन करके अपने दोस्त के घर मालूम करें कि क्या सब कुछ ठीक तो है। अहमद कमाल ने कहा। ओह वाकई, ये तो ज़रूरी करना चाहिए। और फिर वो अपने दोस्त के घर का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से की आवाज़ सुनकर उसने कहा, क्या शाहिद अली है? ओह अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। और रिसीवर रख दिया। नहीं, वो घर पे नहीं है, अरसलान अहमद ने कहा। अब हमें इस न्यू लाइटर डिज़ाइन शॉप पर जाना होगा, शायद वहाँ कुछ काम की बात मालूम हो जाए। अहमद कमाल ने कहा। हाँ बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो न्यू लाइटर डिज़ाइन शॉप में दाखिल हो रहे थे।
कुछ देर इधर उधर लाइटर वगैरह देखते रहे। कुछ 2-3 कस्टमर दुकान में मौजूद थे और फिर उनके जाते ही वो सेल्समैन के पास आ गए। सर, हमें आपसे कुछ पूछना है। अहमद कमाल ने वो लाइटर निकालते हुए कहा। क्या ये लाइटर आपकी शॉप से ख़रीदा गया है? इसने वो लाइटर सेल्समैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सेल्समैन ने वो लाइटर इसके हाथ से ले लिया। जी हाँ सर, ये लाइटर हमारी शॉप से ही ख़रीदा गया है। दरअसल हमारे पास चंद इम्पोर्टेड और महंगे आइटम भी हैं। इन्हीं में से एक ये है, इसलिए जब कोई इन महंगे आइटम में से कोई आइटम ख़रीदता है तो हम उसकी तस्वीर वगैरह और एड्रेस वगैरह रिकॉर्ड में रखते हैं। लाइटर हमसे 15 अक्टूबर को ख़रीदा गया था और इस शख्स की तस्वीर और मुकम्मल एड्रेस हमारे पास मौजूद है। मगर मसला क्या है? आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? सेल्समैन ने हैरत से कहा। दरअसल एक कत्ल की तफ्तीश की वजह से हमें आपकी ज़रूरत पड़ी, हम माजरत चाहते हैं। क्या आप हमें वो एड्रेस और तस्वीर दिखा सकते हैं? अरसलान अहमद ने कहा। जी क्यों नहीं। और फिर वो सेल्समैन अपने पीछे का एक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। 5 मिनट बाद वो एक फ़ाइल उठाए आ गया और वो फ़ाइल उनके सामने रखती वो एड्रेस और तस्वीर देखकर अरसलान अहमद की आंखें हैरत से फैल गई और फिर थोड़ी देर बाद वो शॉप से बाहर आ गए। ये तो मेरे दोस्त शाहिद अली की तस्वीर है और एड्रेस भी उसी के घर का ही है। ये चक्कर मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर वो लाश मेरे दोस्त की है तो मुझे ज़रूर इत्तला मिलती। आखिर ये क्या चक्कर है? क्या आपके दोस्त की शादी हो चुकी है? हाँ, मेरे दोस्त की बेगम का ब्यूटी पार्लर यहाँ से थोड़ा आगे ही है। तुम क्यों पूछ रहे हो? हमें उनसे मिलना होगा। मेरे जहन में एक बात चुभ रही है। शायद मेरा अंदाज़ा गलत हो। उनसे मिलने के बाद ही कुछ मालूम हो सकता है। और फिर 10 मिनट बाद वो शाजिया ब्यूटी पार्लर में दाखिल हो रहे थे। अरसलान अहमद पहले भी 2-3 दफ़ा मिल चुका था शाजिया से। अरे अरसलान भाई, आप यहाँ खैरियत तो है? यहाँ तो सिर्फ लेडीज़ मेकअप किया जाता है। शाजिया ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ भाई, हम जानते हैं। फ़िलहाल हम मेकअप कराने नहीं आए, कोई और मामला है। क्या यहाँ बात करना ठीक रहेगा? अरसलान ने कहा। हाँ बिल्कुल, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ कुछ नहीं, बहुत परेशान हूँ। अरसलान अहमद ने कहा। क्यों, क्या बात है? ये मेरा दोस्त है, ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ ज़रूर, क्या बात है? इसने अहमद कमाल की तरफ देखकर कहा। देखिए मैडम, सबसे पहले आप ये बताएं कि कुछ दिनों से आपने अपने शौहर में कोई तब्दीली तो महसूस नहीं की? अहमद कमाल ने कहा। हाँ, कुछ दिनों से वो बहुत तब्दील हो गए हैं। पहले तो सिगरेट नहीं पीते थे, मगर अब तो सिगरेट बहुत पीने लगे हैं। और हमारी शादी के दिनों की कोई बात अगर उनसे पूछती हूँ तो वो थोड़ा सा जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मैडम, हम कुछ यकीन से तो नहीं कह रहे हैं, मगर हमारा ख्याल है कि आपके साथ जो शख्स आपका शौहर बन के रह रहा है वो आपका शौहर नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो गए? मैं जानता हूँ मैडम, आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगी, मगर हकीकत यही है। अच्छा एक बात बताएं, क्या आपके शौहर के पास एक नीले कलर की जीन्स और एक ब्लैक शर्ट भी थी? हाँ थी तो, मगर अब वो पूरे घर में मुझे नहीं मिली। दरअसल एक रात वो अपने अब्बू की खैरियत मालूम करने गए जो बीमार थे। उस रात वो वहीं पैंट और शर्ट पहन कर गए थे, मगर जब वो वापस आए तो वो किसी और ही ड्रेस में थे और फिर इन्होंने बहाना बना दिया। जी हाँ मैडम, यही बात है। वो आपके शौहर नहीं हैं, क्योंकि वो ड्रेस इस लाश के जिस्म पर था। और फिर अहमद कमाल ने शुरू से आखिर तक की तमाम कहानी शाजिया को सुना दी। ये सुनकर शाजिया की आंखों में आंसू आ गए और वो एक कुर्सी पर ढेर हो गई। हौसला रखिए शाजिया साहिबा, अभी हमें आपके शौहर के कातिल को सजा दिलवानी है। आप बस अभी इसे कोई शक नहीं होने देंगी। हम शाम को आएंगे आपके घर, तमाम बात वाजिया हो जाएगी। और फिर वो वहां से अरसलान के घर गए और शाम 7 बजे वो शाहिद अली के घर पहुंच गए। शाहिद अली का हमशक्ल घर पर ही था। अरे यार शाहिद, बड़े बेवफा आदमी हो, शिकार का प्रोग्राम बनाकर भूल गए। तुमने तो कहा था कि मैं तैयारी करके शाम को आ जाऊंगा, और इतने दिनों से तुम्हारी शाम नहीं आई। अहमद कमाल ने हवा में तीर छोड़ा। हालांकि शिकार का प्रोग्राम तो क्या, वो तो इससे मिला ही नहीं था। इस सवाल के बाद सब कुछ वाजिया हो जाता। वो कुछ देर इसको और से देखता रहा और फिर जो बात इसने की उसके बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। बस यार, मसरूफियत इतनी थी कि टाइम ही नहीं मिला शिकार पर जाने का। अब कभी प्रोग्राम बनाएंगे। अहमद कमाल और अरसलान अहमद ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमद कमाल ने वो लाइटर निकाल कर सिगरेट जलाई। लाइटर जलने पर ही शाहिद के हमशक्ल के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उन दोनों ने इस बात को वाज़ेह महसूस किया। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे। और फिर वो वहां से निकल गए और अब इनका रुख सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ था। और फिर आधे घंटे के बाद वापस आए तो पुलिस के साथ शाहिद अली के घर दाखिल हो रहे थे, जबकि शाहिद अली का कातिल हैरत से इन सबको देख रहा था। ये सब क्या है? आप सब क्यों आए हैं? इसने सोफे पर से उठते हुए कहा। आपको लेने आए जनाब। अब आप शराफत से हमारे साथ चल रहे हैं या नहीं? इससे पहले कि हम कोई और आसान तरीका आजमाएं। और फिर आगे बढ़कर इसके हाथों में हथकड़ी पहना दी और फिर इसे पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां इसने 10 मिनट में ही अपनी हिम्मत हार दी। जी हाँ, मैंने ही शाहिद अली को कत्ल किया है। दरअसल मैं एक चोर हूँ। इत्तेफाक से एक दिन मैं शाहिद अली के घर चोरी करने चला गया। वहाँ मैंने शाहिद अली को सोते देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो मेरा हमशक्ल था।
میرے شیطانی دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اور پھر میں نے اس کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، اور پھر ایک رات میں نے ایک بالکل سنسان سڑک پر اس سے لفٹ مانگی، اور گاڑی رکتے ہی میں نے اس کے سر پر کپڑا ڈال کر اس کے سر پر وزنی شافٹ سے تب تک وار کرتا رہا جب تک کہ وہ ہلاک نہیں ہو گیا، اور پھر اس کی لاش لے جا کر ایک درخت کے نیچے دفنا دی۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور پھر صبح تک شاہد علی کی لاش کو وہاں سے نکال کر اسلامی طریقے سے سپرد خاک کر دیا گیا، اور احمد کمال اور ارسلان احمد نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ختم شد۔ کہانی اچھی لگے تو کہانی کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔